1.2.8 धर्म स्वनुष्ठित पुष धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथा कथा सूयमुत्पाय उत्पादयति उत्पादयेद्यदि विरतिम तिं श्रम श्रमये एव हि केवलम्. Translation: the occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Purport: there are different occupational activities in terms of man's different conception of life. To the gross materialist who cannot see anything beyond the gross material body, there is nothing beyond the senses. Therefore, his occupational activities are limited to concentrated and extended selfishness. Concentrated selfishness centers around the personal body. This is generally seen amongst the lower animals. Extended selfishness is manifested in human society and centers around the family, society, community, nation, and world with a view of gross bodily comfort. About these gross materialists are the mental speculators who hover a lot in the mental sphere, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. But above the body and mind is the dormant spirit soul, whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul. Because foolish people have no information of the soul and how it is beyond the purview of the body and mind, they are not satisfied in the performance of their occupational duties. The question of the satisfaction of the self is raised herein. The self is beyond the gross body and subtle mind. He is the potent active principle of the body and mind. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with emolument of the body and mind. The body and the mind are but superfluous over covering of the spirit soul. The spirit soul's need must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself. The need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. He wants to get out of the covered walls of the greater universe. He wants to see the free light and spirit. That complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of Godhead. There is a dormant affection for God within everyone. Spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for gross and subtle matter. Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagement that will evoke our divine consciousness. This is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord. And any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of Godhead is said herein to be simply a waste of time. This is because other occupational duties, whatever ism they may belong to, cannot give liberation to the soul. Even the activities of the salvationist are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. The gross materialist can practically see that this material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. Even if he goes up to the Swargaloka, he will find no permanent abode for his hankering abode for his hankering soul. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. क्या लगा? मटेरियल बॉडी का डिस्क्रिप्शन दिया है और कैसे हम माइंड और बॉडी में एनग्रोस्ड रहते हैं.
बट एक्चुअली अपने सोल को नरिशमेंट अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी से ही मिलेगा. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. यस, लास्ट लाइन ही सब कुछ बोलती है. वाह, आप आ गए. यस. ओके, और कुछ बोलना है किसी को? आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ. धर्मस्य आपरवर्गस्य पकालपते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभ्याय हि स्मृत. Translation: all occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. समझे ही नहीं. ठीक है, अभिषेक को नहीं समझा, मैं वापस पढ़ती हूँ. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. We have already discussed that pure devotional service of the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. But there are others who consider that all kind of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain. The general tendency of any ordinary man is any part of the world is to gain some material profit in exchange of religious or any other occupational service. Even in the Vedic scriptures, for all sorts of religious performances, an allurement of material gain is offered. And most people are attracted by such allurements or blessings or religiosity. Why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. This cycle of occupational engagements includes so-called religiosity followed by material gain and material gain followed by fulfillment of desires. Sense gratification is the general way for all sorts of fully occupied men. But in the statement of Sutta Goswami, as per the verdict of the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, this is nullified by the present shloka. One should not engage him in any sort of occupational service for material gain only, nor should material gain be utilized for sense gratification. How material gain should be utilized is described as follows. कुछ शेयर करना है? प्रभुपाद ने क्लियर बोला है कि मटेरियल गेन के लिए भक्ति नहीं करने का. और बेसिकली वही है, मतलब वन शुड नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल सर्विस फॉर मटेरियल गेन ओनली. एक्चुअली इसमें मटेरियल गेन बाय प्रोडक्ट है, वो हमको नेक्स्ट वर्स में पता चलेगा. शायद वो अकाम सर्व काम वाला वर्स है. नॉर शुड मटेरियल गेन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. हाउ मटेरियल, नेक्स्ट वर्स में समझेगा. बाकी किसी को कुछ बोलना है क्या? कौन है? पायल माता जी, पूजा माता जी. मतलब प्रभु इसमें मटेरियल गेन को क्या मतलब गलत बताया हुआ है? भक्ति के कार्य को मटेरियल गेन के लिए नहीं करना चाहिए. मतलब जैसे अभी कोई कीर्तन अच्छा गाता है तो उससे कीर्तन गा के पैसा नहीं कमाना चाहिए. प्रोफेशनल नहीं, सिंगर. पर यहाँ पे लिखा है ना, सर्विस फॉर मटेरियल गेन ओनली, मतलब मटेरियल गेन भी कर सकते हैं पर उसके साथ स्पिरिचुअल नहीं, गेन नहीं, भी कुछ ऐसा नहीं है. इसका मतलब यही है कि अगर आप डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हो, उस डिवोशनल एक्टिविटी से
आपको मटेरियल चीजें नहीं मतलब मटेरियल चीजों में एंगेजमेंट, जैसे वही उसका एग्जांपल वही है, कीर्तन करने आता है मेरे को, तो मेरे को कोई बुलाएगा कि प्रभु आपको मैं हम लोग 10,000 रुपए देंगे, आप इधर आके कीर्तन करेंगे क्या, तो हमको नहीं करना चाहिए। तो ये है कि डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस को मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करने का। अगर आपको मटेरियल चीजें चाहिए तो उसके तरीके अलग है, वो हम लोग कर सकते हैं, पर डिवोशनल सर्विस को उसका टूल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा है इसका सार। पर अगर किसी के पास टैलेंट ही वही है, टैलेंट मतलब टैलेंट अलग हो गया ना माता जी। नहीं मतलब अगर हाँ, अगर सपोज भगवान का नाम मत गाओ, फिर बॉलीवुड का गाना गाओ, पैसा ही कमाना है। नहीं, पर बहुत सारे कीर्तनियाज है ना कि उनपे मतलब इसी पे चलता है उनका। बहुत सारे कीर्तनियास है, आइंद्र प्रभु ने वो स्ट्रिक्टली मना किया है कि जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है वहां पे आप कीर्तन नहीं करना चाहिए, वो ओरिजिनल कीर्तन स्टैंडर्ड्स वही है। अच्छा। और उस इच्छा से तो बिल्कुल, जैसे कि वो ब्राह्मण जैसा हो गया, जैसे ब्राह्मण लोग कोई इच्छा के बिना यज्ञ करवाते थे, फिर वो गृहस्थ का मतलब वो है, ड्यूटी है कि वो ब्राह्मण को दक्षिणा दे, लेकिन ब्राह्मण वो अपेक्षा करके नहीं आता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे को 5,000 रुपये मिलेगा। तो ऐसे अभी कीर्तन मेला होता है दुनिया के हर कोने में, तो कीर्तन वाले लोग जाते हैं, तो वो लोग सब टिकट विकेट सब स्पॉन्सर्ड रहता है, लेकिन ये वो लोग ये इच्छा से नहीं जाते कि मैं उधर जाऊंगा तो मेरे को इतना पैसा भी देंगे वो लोग डोनेशन। तो वो इच्छा बेसिकली कृष्णा का जो कैमरा है ना, वो इंटरनल कैमरा है, बाहर का नहीं। इंटरनली आपका क्या इच्छा है, इंटरनली आपका क्या इंटेंशन है, उसके ऊपर डिसीजन होता है सब। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। काफी मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा मेरे को तो बहुत सोचना पड़ेगा, आपको सिर्फ थोड़ा ही सोचना पड़ेगा। आगे। मतलब अच्छा, अब जैसे मतलब एग्जाम्पल लेते हो, सिंस इट इज अ वेरी क्लोज मीटिंग हमारी है ये, अगर हम्म। मैं एग्जाम्पल लूं तो अपने दिग्विजय प्रभु, सो वेयर एवर ही इज चार्जिंग फॉर हिज साउंड सिस्टम, करेक्ट। बिकॉज उनका ऑक्यूपेशन ही यही है। करेक्ट। ओके, ओके। वो साउंड सिस्टम है ना, अभी वो कीर्तन से पैसा नहीं कमा रहा है, साउंड सिस्टम से कमा रहा है। डिवोशनल राइट। डायरेक्ट करके तुम पैसा नहीं कमा रहे। मतलब मैं डीटी वर्शिप अभी ऐसा अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोलना ही है तो बहुत सारे मंदिर में डीटी वर्शिप के पुजारी लोग को भी पैसा दिया जाता है क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए उनको जरूरी है, यस, यस, हाँ। तो वो दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो डीटी वर्शिप वाला पुजारी बोलेगा नहीं मेरे को इतना नहीं, इतना ही पैसा चाहिए, तो वो गलत है। दोनों तरफ से सेंसिटिविटी का चीज है एक्चुअली, मतलब ब्राह्मण को भी सेंसिटिव रहना चाहिए कि मेरे को मांगना नहीं है, और गृहस्थ को अल्ट्रा सेंसिटिव रहना चाहिए कि इसके मांगने से पहले मेरे को दे देना चाहिए। तो ये हम्म। दोनों धर्म बताया है शास्त्रों में, सिर्फ एक जन का काम नहीं है, दोनों तरफ का काम इसका एक वैसे। एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया, जस्ट सॉरी, मतलब हाँ, हाँ। शायद ये रेलेवेंट हो नहीं हो पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास अगर मैं गई, तो एक मंदिर के अंदर के एस्ट्रोलॉजर था, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनको पूछा कि आपके चार्जेस क्या है, तो उन्होंने बोला जो आपको इच्छा है वो। तो है। इफ आई पुट 11 और 50 और 500 और 1000, इट डिपेंड्स ऑन मी, सो ही डिड नॉट आस्क। बट इफ एन एस्ट्रोलॉजर हु सेज दैट माय चार्जेस आर 1000, 2000, 3000, then that is something which is different, where he's doing. So शायद I don't know if it's relevant or not, but इज रिलेवेंट, ये मेरे परफेक्ट है आपका क्वेश्चन। उसमें देखो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ना सब कुछ इवॉल्व हुआ है। अभी एस्ट्रोलॉजी इज हैज बिकम अ प्रोफेशन मोर देन अ ब्राह्मण। करेक्ट, एक्चुअली पहले सिर्फ ब्राह्मण लोग ही, वो भी दूरदर्शी ब्राह्मण लोग जो इतना एस्ट्रोलॉजी पढ़ करेक्ट, के तपस्या करके वो लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे। अभी क्या है, इट इज लाइक अ साइंस अवेलेबल टू ऑल, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ और उसको प्रोफेशन बना सकते। बट वो करेक्ट, अल्टीमेटली आप एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, उसमें आगे एडवांस कोर्सेज करेंगे तो आपको समझेगा कि जब जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, किसी का चार्ट देखते हो और उसको सजेशन देते हो ना, उसके भाग का कर्म भी आपको लगता है, ओ, ओके, बिकॉज यू आर प्रिडिक्टिंग, और उसको आप वे दे रहे हो कि आपका ये ऐसा बुरा होने वाला है लेकिन आप ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। तो मतलब आपने राइट, काल में हस्तक्षेप कर दिया, मतलब उसके सामने वाले के ओ, डेस्टिनी में उंगली किया आपने।
तो वो Okay, आपको okay, वो जो कर्म है ना उसका पार्ट आपको लेना पड़ेगा, जो एस्ट्रोलॉजर है। इसलिए पहले के जमाने में एस्ट्रोलॉजी प्यूरिटी बेस्ड था, इट हाँ इट हाँ हाँ, नॉट नॉलेज बेस्ड, इट वाज प्यूरिटी नॉट बेस्ड। प्रोफेशन बेस्ड, ओके। हाँ, कि मेरे को इतना Doctor पता है, profession. मेरे को इतना पता है ना, तो मैं इसको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको उतना तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले कर्म लेने का ताकत है क्या? राइट राइट राइट, तो एस्ट्रोलॉजी थैंक यू भी थैंक एक वो बन गया है। पॉइंट है कि अगर, लेकिन जैसे नहीं, देयर इज वन मोर पॉइंट ऑन दिस आई वांटेड टू से दैट मतलब वो डिपेंड करता है, लाइक वी हैव सीन अदर वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स हु इज कृष्णा कॉन्शियस एस्ट्रोलॉजर एंड ही इज लाइक ही नोस, तो वो क्या करते हैं कि मतलब ही चार्जेस, इट इज नॉट लाइक कि आप मुझे जो दे दो ये चलेगा, ऐसा नहीं चलता है, मतलब ही चार्जेस प्रॉपरली। एट द सेम टाइम व्हेन ही कम्स एट आवर होम और समवन्स होम ना, ही गिव्स द लक्ष्मी टू देयर लॉर्ड्स, मतलब जैसे हमारे घर पे भगवान है, मतलब कि जो भी आपके मंदिर में, एंड यू कैन नॉट गिव लक्ष्मी डायरेक्टली टू हिम बिकॉज ही टेल्स कि मैं पहले आपका जो भी मैंने दिया है, पहले आई विल सबमिट इट टू योर लॉर्ड एंड देन आई विल टेक इट, सो दैट वो थोड़ा सा कर्मा वाला पार्ट हैज बीन टेकन केयर। हाँ, बट वो सही है कि वो लोग का कर्मा तो लगता ही है, इसीलिए वो लोग को और एक्स्ट्रा तपस्या वगैरह वो सब करना ही पड़ता है, तो दैट इज परफेक्ट। या अभी दैट टाइम के इज हिसाब से बदल गया ना माता जी। अभी तो पहले क्या है, जो गृहस्थ है, जो राजा लोग है, जो भी है, जिसके पास एस्ट्रोलॉजर जाता था, वो जेनरस होता था यार, तो जो चाहिए मैं वो पूछने से पहले दे देगा। अभी अपने जेब से निकल नहीं है, उसको देगा क्या, उसको मांगना ही पड़ेगा भाई। मेरे को अगर मेरे को मेरा घर चलाना है और मैं लोगों का हाँ हाँ हाँ, हूँ, तो नहीं मेरे को इतना पैसा तो लगेगा कम से कम। तो वो नहीं, आई एम नॉट ये अगेंस्ट हिज आस्किंग, आई एम नॉट अगेंस्ट हिज हाँ आस्किंग, बट आई एम टेलिंग कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस पार्ट जो हम बोल रहे हैं ना, सो लाइक व्हाट ही डज, लाइक कि वो आपके भगवान को दे देते हैं, पहले पैसे बोलते हैं मेरे को डायरेक्टली हाथ में नहीं देने का, पैसे आपके भगवान के पास रखने का, और उसके बाद मैं वहां से लूंगा, मतलब इन दैट वे ही इज ऑफरिंग टू द लॉर्ड वॉट एवर सजेशन ही हैज गिवन अस, एंड फिर वो लेते हैं जो भी मतलब वो लक्ष्मी, वो क्योंकि उनके भी मतलब दैट इज उसमें हिज देखो, अभी प्रोफेशन। अपने मुरलीधर प्रभु है, वो यज्ञ करते हैं लोगों का। हाँ मुरलीधर प्रभु यज्ञ करते हैं ना, वो पैसा लेके हाँ, पूरा मंदिर में डोनेट कर देते हैं, जितना भी उनको दिया रहे। मतलब अगर 10,000 दिया है, 20,000 दिया है, 50,000 करेक्ट। दिया है, वो पूरा जाके मंदिर को दे देता है। क्योंकि he is earning by हम्म। profession, he is a dentist, he is living by dentistry, he will not earn, he is living by brahmanical जो उनका कार्य है। तो अभी सब थोड़ा मिक्स एंड मैच है, तो इसलिए सब कुछ हम्म। मैच करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था बिकॉज मतलब कि प्रभु जी ने वो पहले लक्ष्मी भगवान को दे दिया, उन्होंने बोला नहीं जो भी है मैंने इसके भगवान की दया से, और फिर उसके बाद उन्होंने वहां से वो लक्ष्मी लिया। आई लाइक। हम्म। सही। आगे बढ़ते। हम्म हम्म कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लभो जीवेते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो याश्चेन कर्मभिः. Translation: Life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's works. Purport: the completely liberated material civilization is The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation. The very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. In the political field, the leader of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification.
The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense gratification, they dethrone the leaders. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. Even those who are on the path of salvation desires to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation and not for sense gratification. Because the body is made of senses, which also require a certain amount of satisfaction. There are regulative direction for satisfying of such senses, but the senses are not meant for unrestricted enjoyment. For example, marriage or a combination of a man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. In the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning. But foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. Seekers of absolute truth are never allured by unnecessary engagements in sense gratification. Because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. In every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth. And that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. And what that absolute truth is explained as follows. इसमें तो बहुत कुछ है। किसी को कुछ बोलना है? नहीं माता जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काफी. So our aim should not be for sense gratification Yes. of life. बट पता नहीं क्यों ये बोलना जितना इजी होता है उतना फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता जाता है. Hmm. कई बार सेंस ग्रेटिफिकेशन और उसको वो कंट्रोल करने के चक्कर में ना अपने संग धीरे धीरे टॉर्चर होने लगता है. Hmm. वो उल्टा भक्ति पे भारी पड़ता है. सही पकड़ा माता बट जी. हाँ करेक्ट. तो माता जी उसको कैसे काउंटर यस, करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. इसके लिए ना माता जी एक मैच्योर मेंटर का होना बहुत जरूरी है. ये है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर है ना घंटों डिस्कशन हो सकता है और घंटों डिस्कशन हुआ है पहले भी. उसके ये एक्चुअली ऐसा चीज है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑन सेल्फ, और जो दूसरा टर्म है प्रभुपाद ने यूज किया सेल्फ प्रिजर्वेशन. ये दो चीज को आप पहले अपन समझेंगे ना, पहले उसको ही टाइम लगेगा. अभी मैं आपको एक थोड़ा ग्रॉस लेकिन एक्यूरेट एग्जांपल बताऊंगा. तो मेरा उम्र छोटा है तो आप सब लोग माफ कर देना. अपने वृंदावन में एक महाराज है, इस्कॉन के नहीं है. वो बहुत प्योर साधु है, मतलब प्योर डिवोटी, एकदम जबरदस्त डिवोटी. वो पायल माता जी को पता होगा, वो ब्रज के अपने परमानंद महाराज को पहचानते हैं आप? हाँ, हाँ. तो परमानंद महाराज का है ना क्वेश्चन आंसर सेशन होता है सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में, जहाँ पे काफी डिवोटी लोग इस्कॉन से बाहर से, मतलब वृंदावन में जो रहते हैं वो जाते हैं और पर्सनल क्वेश्चन जो रहता है वो पूछते हैं. तो उनके क्वेश्चन आंसर सेशन में एक माता जी आई. अभी ये थोड़ा आप अलर्ट हो जाओ, थोड़ा एक्सप्लिसिट कंटेंट है ये. तो माता जी ने क्वेश्चन पूछा परमानंद महाराज को कि मेरा जो हस्बैंड है वो डिवोटी नहीं है. मैं माला करती हूँ, मैं भक्ति करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है ना वो डिवोटी नहीं है. बट ही वॉन्ट्स टू एंजॉय मी एवरी टाइम, बट मैं उसको मैं भाग जाती हूँ उस समय. तो उसका कैसे करें, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी डिवोटी बन जाए. तो परमानंद महाराज ने, अभी वो सन्यासी है ठीक है, उनका आप फोटो भी देखोगे ना तो फोटो में से भी इतना तेज आएगा कि
आपको आंख बंद करना पड़ेगा। इतना ग्लोरियस बाबाजी है, लेकिन मैच्योर आंसर देते ना, एकदम जबरदस्त आंसर दिया। उन्होंने बोला कि आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा कृष्ण की सेवा है, आपको भोगना नहीं। तो आपका पति जो चाहता है, अगर आप वो सेवा के भावना में करो, ना कि एंजॉयमेंट की भावना में, तो जो आप कर रहे हो, इफ यू आर सेटिस्फाइंग हिम, दैट इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइंग कृष्णा, बिकॉज आपका इच्छा नहीं है, लेकिन आपने कृष्ण की सेवा के लिए कि अल्टीमेटली ये मेरे से प्रसन्न होके भगवान की भक्ति में आ जाएगा, ये सोच के अगर आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में जो थिन लाइन है ना, उसको पहचानने के लिए बहुत ही मैच्योर मेंटर्स के साथ में रहना जरूरी है। बहुत ही और ये भक्ति है ना, ये 1-2 साल 5 साल 10 साल का बात है ही नहीं। इसको है ना 50 साल भी लगेगा तो भी अपने को समझ में नहीं आएगा कि असली में क्या चीज है, मतलब व्हाट इज द रियल थिंग बिहाइंड दिस। तो इफ यू आर एक्सटर्नली परसीविंग दैट ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो माता जी का, लेकिन शी इज सर्विंग कृष्णा बेटर, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब वो महाराज के दृष्टिकोण से महाराज ने वही आंसर दिया कि अगर आपका सरेंडर देख के वो एक ना एक दिन तो भगवान भी उसके हृदय में बैठे ही है, वो पति के, वो एक ना एक दिन तो वो प्रसन्न होगा, एक ना एक दिन तो पूछेगा ही कि यार तू किधर जाती है? अच्छा तू मंदिर में जाती है क्या? अच्छा मैं भी आता हूँ तेरे को। हाँ अभी मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि आपका इंटेंसिटी कितना है और सामने वाला कितना मतलब कौन से लेवल पे है, तो वो रेसिप्रोकेशन भी अकॉर्डिंगली होगा। दैट इज ऐसा ब्लाइंडली अब्यूज भी नहीं सह सकते हम लोग। तो वो अब मैच्योरिटी देख के हमको उस मतलब बेसिकली एक मैच्योर मेंटर का होना बहुत जरूरी है, और वैसे एसोसिएशन में रहना चाहिए मैच्योर लोगों के साथ में बेसिकली। तो हमारे पास आखिरी 10 मिनट है, तो और किसी को कुछ। यस, मैच्योर मैच्योर और जो आपकी उस कंडीशन को जज ना करे। हाँ, नॉन जजमेंटल फ्रेंड्स होना है इस्कॉन में नहीं, भक्ति के मार्ग में नॉन जजमेंटल फ्रेंड्स होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है आपके तो ढूंढ लीजिए, पर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो अगर आप ब्रजविहार प्रो के क्लास में थे ना माता जी, अभी यहाँ पे गोपाल गार्डन में, तो उसमें प्रभु जी ने क्या बोला? हाँ, वही चीज बोला कि कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बोल सकते हो। नॉन जजमेंटल। अगर वो आपका पार्टनर है दैट इज बेस्ट, अगर वो नहीं है तो कोई किसी को तो आपको कोई माता जी को ढूंढना ही पड़ेगा जो आपको नॉन जजमेंटली आपका सुने और आपसे मतलब वार्तालाप कर सके। हार्ट शेयर कर सको। परफेक्ट लो, एकदम परफेक्ट बोला। क्या हम्म एग्जाम्पल था? परमानंद महाराज का है ना लेक्चर यूट्यूब पे देखना, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो ये लेक्चर की भी यहाँ सीरीज पर होती अगर है उनकी? यहाँ पर क्या क्या? उनके लेक्चर की भी ऐसी सीरीज होती है जो सुबह वो लेते हैं, वो लेक्चर की? वे तो जो लेते हैं ना वो क्वेश्चन आंसर होता है, वो प्राइवेट होता है वो अच्छा, वो प्राइवेट रिकॉर्ड होता नहीं है, होता ओके। है, रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ हाँ, वही, हाँ, ठीक। यस। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं ना, क्योंकि अभी हार्डली अपने पास 8 मिनट है। और किसी का कुछ बोलना है? नहीं बोलते। अच्छा, कल रात को शायद मैं रीडिंग में नहीं आ पाऊंगी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। कल रात को मैं ट्रेन में रहूंगी, तो कल के लिए कोई ऐसा होस्ट कर सकता है क्या? और 2 माताजी जो रीडिंग कर सके। जी लैपटॉप से मैं ट्राई करती हूँ, मतलब यस ये टाइम आई थिंक यस। आई हाँ विल आप, बी एबल टू। हाँ यस हाँ, परफेक्ट। तो आप रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी कर दूंगी। हाँ यस हाँ, यस। मैं आपको कल ज्वाइन सेम जूम करके लिंक। होस्ट बना दूंगी। हाँ हाँ, तो मैं जब भी लैपटॉप से ये करूंगी ना, मतलब लॉगिन, तो दोनों पूजा को मतलब होस्ट बना देना। यस 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 ठीक यस। है। हाँ नहीं, हाँ। दोनों को नहीं, मैं एक को ही बना सकती हूँ, तो मैं नहीं, आपका बना अच्छा, सकते तो आई विल लॉग इन फ्रॉम लैपटॉप एंड हैं। फिर यस। मैं आपको बताती हूँ या कैसे। एक बार मैं हाँ आपको हाँ होस्ट बना दो ना, फिर आप फोन से भी लॉग इन कर लेना चाहिए तो। हाँ हाँ हाँ, तो आप रिकॉर्ड भी कर पाओगे, स्क्रीन शेयरिंग भी कर पाओगे। यस यस। यस।
रीडिंग भी फिर आप है, पायल माता जी, रिया माता जी, कोई भी। Yes, yes. ओके, चलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. और मैंने कुछ बोला तो गलत लगा तो सॉरी। नहीं प्रभु, नहीं you प्रभु, are आपका giving तो ऊपर perspectives. You are बड़ा giving ही हो देते आप perspectives. प्रभु, हम्म बड़ा ही मिलता है।